Let us try to harness those resources, those ideas that are born in India, that were created in India. और हमने कई बार देखा है इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज आगे तो चली जाती है पर उसके MSMEs जो बैकबोन होती हैं वो पीछे रह जाते हैं. अब जो नए लड़के आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं जो अच्छा पढ़ लिख के ला रहे हैं, probably they are bringing that vision to the board. There are so many people entering the industry. There are so many people who are about to enter the industry. There are so many people who haven't thought about it yet, right? So when I say zero waste is nothing is going to Yamuna ji, nothing is going to landfill. 5 लाख रुपए की एक लागत से भी आप इंडस्ट्री के पार्ट बन सकते हैं. अतिथि देवो भव हमारे देश का कल्चर रहा है. We said let us give an experience of अतिथि देवो भव to everybody who steps in. और हम प्लास्ट इंडिया में प्लास्टिक एग्जीबिशन नहीं कर रहे हैं, हम भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो कम से कम आप आइए कि जो चीज़ को आप रोज उपभोग कर रहे हैं वो बनती कैसे है. So most exhibitions are about showcasing of products. But what if I tell you that an exhibition is about to transform an industry? I am Arun Singhal, founder of Source One, and today I am sitting with Mr. Alok Tibrewal, chairman of the National Executive Committee at Plast India Foundation. We'll talk about the values, the vision, and what goes behind to conduct a mega event. Alok ji, thanks for joining me today. Hi Arun, how are you? I am very good, Alok ji. Thank you so much. Let's address the elephant in the room. Plast India 2026. What's your vision behind this? Could you please take us through how is it going to be different from all other events that have happened? Normally when you talk about exhibitions, you have a lot of MICE events. I think it is time to go beyond an exhibition. It is time for India to tell its own story. Plast India 2026 का जो टैगलाइन है भारत नेक्स्ट, because I seriously believe I needn't talk about growth of plastics. I should talk about growth of economy, growth of भारत. इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी तो प्लास्टिक तो अपने आप बढ़ेगा, because it is inseparable. And rather contribution of plastic henceforth for next 2 decades is going to be more than what it was. So एक fair assumption है कि GDP का 1% करीब प्लास्टिक आज के दिन, आप 4 ट्रिलियन पे हो. ये भी फैक्ट है कि आने वाले 12-15 वर्षों में यू आर रीचिंग 10 ट्रिलियन. इट इज ऑल्सो फेयर एस्टिमेट दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लास्टिक इन द टोटल GDP विल बी 1.4-1.5%. सो फेयर एस्टिमेट द काइंड ऑफ ग्रोथ वी आर लुकिंग. हम थोड़ा संभल के बोलते हैं 10%, 12%. टू मी द ग्रोथ ऑफ प्लास्टिक इज गोइंग टू बी मच मोर. क्योंकि अभी भी जब प्लास्टिक की बात करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन प्लास्टिक्स आर नॉट इन दैट नेट व्हेन वी कैलकुलेट दैट. भारत नेक्स्ट हमने इसलिए लिखा कि व्हाट इज इंडिया ऑल अबाउट. India is now all about scale. It is about the manpower we have. We are proudly saying देश की 50% वर्कफोर्स 28 साल 29 साल के एवरेज में. वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दैट. भारत नेक्स्ट एक थीम है जो बेसिकली एग्जीबिशन बियॉन्ड की बात करते हैं. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर इंडिया possesses. So Plast India 26 is celebration of India to come in next 10 years. And we have added many features beyond an exhibition. Right. आपके इस पूरे वक्तव्य से एक एज डेमोग्राफी टैलेंट का थोड़ा जिक्र आया. आई थिंक यू हैव एन एंगेजमेंट विद IIM Calcutta as well, Yes. where young students are working with the veterans of the industry, so a classic combination of academics and industry. Could you walk us through what is that all about? See, it is said that India is a land of billions mind, and minds which are far sharper, far more intelligent than what you see in the rest of the world. And you will see Indians have performed better than other communities even when they are working outside India. मेरा एक समझना था 10 साल 20 साल as I kept growing. People have great ideas, people have skill sets, people want to innovate. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टिपिकल मिडिल क्लास है, वहाँ पे बच्चों के सपने या तो क्लासरूम में मर जाते हैं या इनके ड्राइंग रूम में ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली प्रेशर्स है. दे वांट देयर चाइल्ड टू स्टडी मोर, टू डू अ जॉब. एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आई थी. एक अपने हिंदुस्तान में साधारण घरों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कोई सोचता नहीं. द वे द बिजनेस इज चेंजिंग, यू कैन ड्रीम ऑफ एनीथिंग एंड यू कैन अचीव एनीथिंग. तो हमने ये सोचा कि let us now take a step forward. We have matured as an industry. It is time to do hand holding of these minds.
तो हमने एक IIM के साथ प्लास्ट इंडिया स्टार्टअप सर्च विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड भारत नेक्स्ट चैलेंज चालू किया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वी हैव फ्लोटेड दिस आइडिया टू मेनी कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स एंड इन जनरल पब्लिक कि किसी के पास भी एक इनोवेटिव आइडिया है या कोई इनोवेशन है, वो एंट्री फिल कर रहा है। IIM को हमने इसलिए रखा कि क्रेडिबिलिटी आती है, देन देयर इज़ अ प्रोसेस इन विच यू चर्न आउट। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द टॉप 10 टू भारत मंडपम इन दिल्ली। उनको हम इन प्राइम लोकेशन में फ्री बूथ स्पेस दे रहे हैं विच इज़ वर्थ 2 lakhs, so that they get an opportunity to interact with those 6 lakh footfalls. प्लस कोई भी VIP आता है, चाहे मंत्री हो, चाहे सेक्रेटरी हो, पॉलिसी मेकर हो, वो भी उनसे इंटरेक्ट करें कि टैलेंट क्या है। IIM ने प्लेस किया है कि अप टू 1.5 crores they are willing to invest if they get an idea. At Plast India also we are in that process that if we get some great idea, we are going to further promote that person among the core industry group and also try to give some financial aid and tell them to come back after 6 months how much they could develop. तो ये एक पहली पहल है। टू मी दिस हैज़ टू बी ए रेगुलर एक्सरसाइज बाय प्लास्ट इंडिया, क्योंकि इंडस्ट्री को अगर हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलप्ड इकोनॉमीज, वी विल हैव टू हैव ग्रेट टैलेंट एंड ग्रेट माइंड्स एंड ग्रेट आइडियाज। वी कैन नॉट हैव स्टैग्नेशन नाउ क्रीपिंग इनटू द सिस्टम। इसलिए हमने किया है कि अच्छा फिर क्या होता है, प्लास्टिक में जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये जो माइंड वॉश किया है, ब्रेन वॉश किया है बच्चों का, प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक खराब है, जब अपॉर्चुनिटी दिखती है, जब सस्टेनेबिलिटी की बात, दे स्टार्ट वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी। एक बच्चा एक आइडिया निकाल के लाता है तो वो इन्फ्लुएंस करता है 1 लाख बच्चों को। व्हेन दे सी अ सक्सेस स्टोरी कि जिसको हम खराब बोले तो वो वेल्थ है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू हिट दिस यंग माइंड्स कि जस्ट डोंट से NO, KNOW इज द राइट वर्ड, नो थिंग्स बिफोर यू अटर अ सिंपल सेंटेंस और मेक एन ओपिनियन एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि यंग पीपल को हमको एक्साइट करना है, एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू प्लास्टिक्स। We say any idea, any innovation which will upscale the industry into manufacturing. It may be to saving power. It can be to simplify the production process. It may be to increase outputs. It may be to have more efficient energy systems driving a machine. So it is just not limited to a plastic product. It is about anything that has to do with industry in scaling up industry or making industry more efficient. तो अरुण, इसमें एक और मेरा विजन था। मैं बचपन से एक चीज़ सुन रहा हूँ, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। बट एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज मेड इन इंडिया इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट. मेड इन इंडिया इज somebody invented something elsewhere, somebody innovated something elsewhere, and you start making in India. Don't you think it is the right time when we say born in India or created in India? Let us try to harness those resources, those ideas that are born in India, that were created in India, and let the West, let the Chinese say, no, this product is made in China. So I'm just thinking on those levels. कि let an idea be born in India. It has to be original born in India idea. Let people across globe manufacture those ideas. So this is again a very wishful thinking, but I'm very, very optimistic about it. Born in India, create in India. Fantastic tagline given, Alok ji. आपने इंडस्ट्री स्केल और इंडस्ट्री को आगे लेके जाने की बात की, और हमने कई बार देखा है इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आगे तो चली जाती है, बट उसके MSMEs जो बैकबोन होती है वो पीछे रह जाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, बहुत सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हाउ इज़ प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन हेल्पिंग MSMEs कम अप द कर्व विद द बेस्ट इन द बिजनेस? So if you ask me honestly, it's a very good question. Plast India is all about MSMEs. I am an MSME. With the new limits, 80 to 85% of production या processing you see in plastic is MSMEs. इसमें मैं कहूँगा कि if you look at 20 years, 30 years back, access to information was very little, and educated people in business were less. I'm not saying being educated or uneducated is what is going to decide your success. लेकिन their hunger for knowledge was little. Myopic थे. They never had a vision to think beyond what they were doing. तो हिंदुस्तान में 30 साल तक इंडस्ट्री MSME चली है सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट पे। करेक्ट। ये साल अच्छा चला जाए, किसी ने विजन ही सेट नहीं किया कि 5 साल बाद क्या होना चाहिए, 10 साल बाद क्या होना चाहिए और 20 साल बाद क्या होना चाहिए। अब जो नए लड़के आ रहे हैं या बच्चे आ रहे हैं,
जो अच्छा पढ़ लिख के ला रहे हैं, probably they are bringing that vision to the board, number one. Second, आपकी accessibility to any technology, information or data is much easier today, जो पहले नहीं था. This is fascinating as an industry entrepreneur, Alok ji. We're talking about असुविधाएं हटाने की बात, और आई एम श्योर एज अ को एंटरप्रेन्योर हम सुविधाएं तो ढूंढ लेते हैं, असुविधाएं हटाने का काम सरकार का होना चाहिए. दिस इज फैसिनेटिंग टू हियर अबाउट. एक मेगा स्केल एग्जीबिशन की असुविधा होती है वेस्ट जनरेशन, राइट? करेक्ट. और देयर अ वेरी कैची टर्म दिस टाइम वी आर हियरिंग अबाउट जीरो वेस्ट नाउ. When we hear anything to be zero, it's a rare extreme, right? How would you possibly achieve something like a zero waste? I'll tell you. Again, when we were setting up the tone, theme and the language of Plastic 26, I was very clear, I am not playing a defensive tone. I don't like watching 5-day cricket. I am a T20 fan. एंड यहाँ पे एक साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, 5 साल में बिजनेस हाउसेस बदल जाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता. आज की पीड़ा आज. सो वी टुक इट टू द अदर साइड. आपने प्लास्टिक वालों को बदनाम किया. आप बड़े बड़े एग्जीबिशन करते हैं. कोई भी एग्जीबिशन चाहे कोई भी इंडस्ट्री का है, प्लास्टिक के बिना संभव नहीं है, चाहे पैकेजिंग हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो. आप क्या करते हैं? आप एग्जीबिशन करते हैं, आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, ग्लास वाले, पेपर वाले, कोई भी. प्लास्टिक जो बचता है वो छोड़ के जा रहे हैं और बदनाम हम हो रहे हैं. तो आपको तो किसी ने बोला नहीं प्लास्टिक यूज़ करो, आपका काम नहीं चल सकता प्लास्टिक में. तो हमने डिसाइड किया कि देन वी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज, देन वी हैव एन एस्टिमेट कि 400 से 500 टन वेस्ट जनरेट होता है, इंक्लूडिंग फूड वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट. हमने वहाँ डिटेलिंग किया. ये आप एक एग्जीबिशन की बात करें? एक हमारे स्केल की. ओके. 80,000 स्क्वायर मीटर. ओके. मेडिकल वेस्ट, व्हाट डू वी डू? सो से वी प्लेज, we do a zero waste. Now what is zero waste? Zero waste is anything that is not going directly to landfill is a zero waste, because rest is wealth. Wow. मैंने लैंडफिल में डाल दिया तो वेस्ट है. मेरा नज़रिया ये है कि मैं लैंडफिल में कुछ डालता हूँ या जमुना जी में कुछ भेजता हूँ, वेस्ट है. इसके अलावा सब तुम्हारा एसेट है. इट इज़ वेल्थ. सो व्हेन आई से जीरो वेस्ट इज नथिंग इज गोइंग टू जमुना जी, नथिंग इज गोइंग टू लैंडफिल. अब हम कर क्या रहे हैं? हम रिक्लेम करेंगे, हम रिसाइकिल करेंगे, हम रीयूज़ करेंगे. 3 मंत्र है. वी हैव अ वेरी वेरी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्ड विथ अस हु आर सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स फॉर डूइंग दिस वर्क. अब हम इसमें चाहे लोहा हो, चाहे ग्लास हो, चाहे पेपर हो, चाहे प्लास्टिक हो, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं. जो चीज़ें हम लेके आ रहे हैं, डस्टबिन लेके आ रहे हैं, बेंचेस लेके आ रहे हैं, रिसाइकिल, वो हम डोनेट करेंगे, रीयूज़ हो गया. जितने फ्लेक्सेस हैं, वी हैव टाइड अप with 2-3 very reputed organizations. वो फ्लेक्स कलेक्ट करके वो अपने वेयर हाउस पे शिफ्ट कर रहे हैं. जब भी कोई डिजास्टर आएगा, स्पेशली इन द हिल्स, दोज फ्लेक्सेस विल बी यूज टू मेक टेम्पररी हाउसेस, या उनके छत को कवर करेंगे जब बर्फ़ गिर रही है. जितनी पेट है, बिस्लरी इज डूइंग देयर बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम. पेट की बॉटल जा रही है, आपको सब सारे कॉस्ट इसका. इसके बाद जितनी लकड़ी है, जितना लोहा है, जितने ग्लास है और जितना प्लास्टिक है, वो जा रहा है MRF में, गुड़गांव. वहाँ पे इसको हम प्रोसेस करेंगे. तो हमने पूरा एक पार्ट डिसाइड किया कि हम कर क्या रहे हैं. सो एवरी वेस्ट हैज़ अ स्टोरी. इवन फूड वेस्ट वी आर पुटिंग इनटू कंपोस्टिंग. फूड वेस्ट भी हम थ्रो नहीं कर रहे. फूड वेस्ट को भी हम ITPO में हो चाहे वहाँ पे हम कंपोस्ट करेंगे. कंपोस्टेबल प्लास्टिक जिसको आप बोलते हैं, कंपोस्टेबल गुड्स, पीपल डोंट नो दैट उनको भी कंपोस्टिंग करनी पड़ती है. इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग है मतलब थोड़ा मैंने कहीं डाल दिया कंपोस्ट हो जाएगा. तो हम उसको भी इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग कर रहे हैं. तो वी हैव डिटेल्ड एवरी प्लान कि व्हाट इज वी आर गोइंग टू जनरेट एंड हाउ आर वी गोइंग टू डील विद इट. सो एकदम क्लियर है, मतलब कोई एम्बिग्विटी नहीं है. तो आई एम 100. अच्छा, हम एक नई चीज ऐड कर रहे हैं विच वी आर सेइंग अ बिन विच इज अ लिक्विड वेस्ट बिन. इट हैज अ मैसेज, आई एम थर्स्टी. क्योंकि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, आधी कप कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के साथ डाल देते हैं. दैट इज क्रिएटिंग मोर न्यूसेंस फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन. तो वे इज क्रिएटिंग अ कॉन्सेप्ट कि एक लिक्विड बिन है, उस पर लिक्विड डालो पहले, फिर आप कॉफ़ी का मग डालो, पानी डालो, चाय डालो, पहले लिक्विड को डिस्पोज ऑफ कर दो. तो वी आर ट्राइंग टू एड लॉट ऑफ वैल्यू एंड इज अ वेरी वेरी
strong message that will be going in the exhibition area. I am responsible for my own waste. Are you? Patriotism is also keeping your country clean. Are you patriotic? So we giving very, very strong messages. Har din sahi bin. So those taglines, we are creating 20-25 of them. We are putting 100 volunteers. We are keeping a volunteer at every collection point. If I have 300 collection points, there are 300 volunteers who are going to educate you. And then I am putting cameras on all bins. And with a message, your contribution to a Swachh Bharat is being recorded. Wow. इंसान क्या है ना, डरता है गलत काम करने जब कैमरा होता है इस देश में. तो हम वहां तक उसकी डिटेलिंग करेंगे. कैमरा है, वहां लिखा है कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत इज बीइंग रिकॉर्डेड, सो दैट एटलीस्ट आप अस्वच्छता कर रहे हो तो वो भी रिकॉर्डेड है. आलोक जी, एक और टर्म मैंने सुना है इस बार, हम थोड़ा ट्रेडिशन वापस लेके आ रहे हैं इस एग्जीबिशन में. अतिथि देवो भव देश की परंपरा रही है. हाउ इज द प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन रियली इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रिंसिपल फॉर Plast India 2026? I have been coming to Plast India since 1990. Until 2015, I was a very commoner. I have been attending various exhibitions in India, outside India. To me, one thing is very clear. Exhibition financially becomes sustainable because of participants or exhibitors. Yep. Exhibition can only become successful because of visitors. तो एक एग्जीबिशन को सक्सेसफुल बनाने वाली जो एक प्रजा है उसके बारे में कोई नहीं सोचता. करेक्ट. सो वी डिक्लेयर्ड ऑन 23 अगस्त 2024 प्लास्ट इंडिया 2026 एक विजिटर सेंट्रिक एग्जीबिशन होगा. Sometimes it becomes a mela where nobody. Yes, correct. So if you see the recordings, Plast India is the only exhibition in India where there is no free entry. मतलब इतने बड़े स्केल का, छोटे में तो आप कर सकते हो. इतने बड़े एग्जीबिशन में आप डिक्लेयर करते हो इट इज नॉट अ फ्री एग्जीबिशन, इज अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू गिव. करेक्ट. इट्स नॉट अ फ्री एग्जीबिशन, सो इट इज नॉट अ मेला. अतिथि देवो भव हमारे देश का कल्चर है, ट्रेडिशन. सो वी बीन वर्किंग ऑन दोज 5 T's प्रिंसिपल ऑल्सो. So we said, let us give an experience of Atithi Devo Bhava to everybody who steps in. What are we doing? I believe when you walk into Plast India 26 on 5th, you will see what you have not seen in India, or for that matter anywhere in the world. The fit, finish, style. We are also working on behavior patterns of people who are going to be involved in my team. मैं उनके लेसन भी ले रहा हूँ कि शिष्टाचार किसको बोलते हैं, नम्रता किसको बोलते हैं, विनम्रता किसको बोलते हैं. एक आदमी मेट्रो में आ रहा, ऑटो में आ रहा, वो दुखी होके आ रहा, उसको और दुखी मत करो. डोंट टेक एनी न्यूसेंस, Fantastic. बट डोंट थ्रो योर वेट. वी हैव मेड अरेंजमेंट्स दैट 40,000 पीपल कैन वॉक इनटू ITPO in 1 hour in exhibition. Wow. After collecting their badges. मतलब हमने वैसे गिनती की है. But it is a very very informed decision. It is based on some very very scientific calculations. वाईफाई की समस्या वर्ल्ड में हर एग्जीबिशन में है. वी आर टेकिंग 10 गीगा ट्यूब. वी आर इन्वेस्टिंग क्लोज टू 1.5 करोड़ कि 80,000 लोग वाईफाई पर है. हमने 50,000 स्क्वायर फुट एरिया में फूड कोर्ट बनाया. इतना बड़ा फूड कोर्ट कोई नहीं बना था. और उसमें 100 रुपये में भी पेट भर जाए और 500 की कॉफ़ी भी पी लो. सो वी हैव ऑल्सो कंसिडर्ड द बैंडविड्थ एंड परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल वी विल हैव इनसाइड द ग्राउंड. हमने कैलकुलेशन और किया. मैं खुद ज़मीन पे बैठ के या मुंडेर पे बैठ के खाना खाया हुआ. हमने कैलकुलेशन किया कि 1 लाख आदमी रहेगा. 80,000 स्क्वायर मीटर का एग्जीबिशन है. एक कंजर्वेटिव फिगर था कि 7,000 सीटिंग स्पेस एग्जीबिटर बना देता है. We are adding 7,000 more sitting spaces. At any point of time, there are 14,000 sitting spaces in the exhibition. 1 लाख आदमी का मतलब 1 घंटा में उसको 10 मिनट तो मिल जाएगा बैठने का. So those are detailed calculation. Free water. We have tied up with Apollo. We are giving free medical facilities. I wish nobody has to have it. We have also signed an undertaking with them कि किसी को कुछ emergency होता है, irrespective कौन सी कैटेगरी आदमी है, नेक्स्ट हॉस्पिटल में जाओ अपोलो में ट्रीटमेंट चालू कर देना. उनके नेक्स्ट ऑफ किन नहीं आते हैं तो विल अंडर राइट दैट मनी. बट नो बडी शुड लूज लाइफ और सम इरेपरेबल डैमेज बिकॉज नो बडी अटेंडेड देम.
एक विजिटर का समय किस में ख़राब होता है? अपना फ़ोन चार्ज करने में। फिर वो क्या करता है? एग्जीबिटर के स्टॉल पे बैठ के चार्ज करता है और एग्जीबिटर टाइम ख़राब करता है। हम पोर्टेबल मोबाइल चार्जर्स दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं से भी लीजिए, चार्ज करिए, इट हैज़ ऑल द 3 पिन्स, सी टाइप, बी टाइप, और किसी दूसरे पोर्ट में जाके जमा कर दो, बस कर। हम प्रगति मैदान में जब जीरो वेस्ट की बात करते हैं तो हम प्रदूषण की बात भी करेंगे। प्रगति मैदान इनसाइड इज अ नो व्हीकल जोन, सो द टोटल मूवमेंट ऑफ एवरी विजिटर इज थ्रू गोल्फ कार्ट्स, वो हमने ऐड कर दिया। तो इसी तरह एक एक करके बहुत सी चीज़ें जो हमने ऐड कर दी है कि 3000 सीटर का फूड कोर्ट है। यू विल नॉट सी दैट साइज ऑफ फूड कोर्ट्स एनीवेयर। तो ये सब चीज़ों को लगा के मुझे लगता है कि विजिटर का एक्सपीरियंस बहुत अलग लेवल का होने वाला है। ही विल फील दैट ही वॉज रिक्वायर्ड, उसको ये नहीं लगेगा बिना काम के आगे, ही विल बी वेल अटेंडेड टू, देयर लॉट ऑफ हेल्प डेस्क, lot of information desk, lot of facilities. So I think we are ready to host everybody who steps in, and we are sure he walks back with a smile. Wow. For sure. This is fascinating to hear, Alok ji, for lakhs of people who are on the fence whether to visit the event or not, right? There are so many people entering the industry, there are so many people who are about to enter the industry, there are so many people who haven't thought about it yet, right? एक direct message to conclude this to these lakhs of visitors or lakhs of potential visitors for the event, why should they come this time? ये आपका देश है, इसका जो अगला 10 साल है या 20 साल है बिल्डअप, उसमें आपको भागीदार बनना ही पड़ेगा, और हर आदमी ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी भूमिका भी निभाई है, भारत जहाँ तक पहुँचा है, और उसका योगदान भी किया है। आपकी प्लास्टिक इंडस्ट्री का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि आप 5 लाख की राशि से भी इंडस्ट्री में घुस सकते हो, और आप 5 लाख करोड़ का कौन सी इंडस्ट्री में डेल्टा है? 5 लाख रुपए की एक लागत से भी आप इंडस्ट्री के पार्ट बन सकते हो। Wow. और आप सपना देख सकते हो 5000 करोड़ की इंडस्ट्री लगाने का अगले 10 साल में। इससे बड़ा डेल्टा किसी इंडस्ट्री में नहीं है। आपको इसलिए आना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में सुबह से शाम तक, अगर आप प्लास्टिक उद्योग में नहीं भी हैं तो कम से कम 1100 आइटम को छूते हो प्लास्टिक के। 140 करोड़ की जनता, 800 करोड़ की जनता पूरे विश्व में, आप सोचो कंजम्पशन कितना बड़ा है। तो कम से कम आप आइए कि जो चीज़ को आप रोज उपभोग कर रहे हैं वो बनती कैसे है, नई चीज़ उसमें क्या बनने वाली है, क्या क्या नया मटेरियल वर्ल्ड में ईजाद होने वाला है, और क्या अपॉर्चुनिटीज आपके या आपके बच्चों के लिए है कि आप इस बिजनेस में आ सकें। और हम प्लास्ट इंडिया में प्लास्टिक एग्जीबिशन नहीं कर रहे हैं, हम भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम दिखा रहे हैं आपको कि एक जो हमारा देश है जिसके संस्कारों की हम बात करते हैं ना, कि एक एग्जीबिशन होना कैसे चाहिए। इंडिया डिजर्व्स बिगर एग्जीबिशंस, बट इंडिया डिजर्व्स बेटर एग्जीबिशंस आल्सो। सो वी आर जस्ट नॉट ग्रोइंग बिगर, we are trying to become the best plastic exhibition in the world, and God willing, and the kind of team, the kind of commitment, the kind of dedication and the kind of hand holding I have, like क्या है कि मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, इंडस्ट्री वालों को मुझसे प्यार है, तो जितनी विशेष मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग मिल रही है, आई थिंक आई डोंट हैव एनी सेकेंड ओपिनियन दैट व्हेन यू स्टेप इन भारत मंडपम ऑन 5th you will see what India is not seeing, and you will not see a better plastic exhibition that you have ever seen before. So come and experience and celebrate what Indians, as जिसको बोलते हैं ना कि हम इस देश के प्रभारी हैं, हम भी तो प्रभारी हैं। You don't have to be a political person to be a प्रभारी। So it is time for you to join hands, get together and give India what it deserves. Wow, this is So this is what Plastic Day 26 is all at about. a cost of a family dinner. You get to see a massive industry for a 5-day, 6-day period, right? Yes. This is amazing, Alok ji. Thank you so much for giving us time, Alok ji. And from the house's mouth, Alok ji, Chairman of the National Executive Committee at Plast India Foundation. Thank you so much. Come to Plast India and see the first zero waste exhibition in the world. Come to Plast India and see what innovative young minds have in store for the next decade. Come to Plast India and see how we convert waste into wealth. Come to Plast India and explore unlimited opportunities. I welcome you all to visit Plast India
from February 5, 2026 to February 10, 2026. See you there.